welcome to 3.TV. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. We have got all the major global cryptocurrency news for you from the past week. But before we start, let's cut across to Manoj for the market check. So if we talk about the entire cryptocurrency market, Bitcoin and the other universe are trading higher by 1.5%. If we talk about the entire crypto market cap, this is on the back of cooler than forecasted February inflation data of the US that pushed the entire stocks higher after the 2 days of heavy losses. And if we talk about the last 2-3 weeks, market participants were of the view that buying in this market is like trying to catch a falling knife in a technical language, as we say. But few believe that the extreme oversold conditions and near universal pessimism suggest a relief rally is likely going forward. That's what this is a joint consensus view that is getting developed. Bitcoin, the price topped at $84,000 levels on Thursday, and which offered traders a relief after a highly volatile session. In the last 3-4 sessions, it has been really volatile. The derivative data is also pointing out that despite the improvement provided by the latest US CPI index, uncertainty remains in the air as the outlook for the inflation remains hazy due to the trade policy developments around the tariffs. As we all are aware, Canada, Mexico, China, and the retaliation tariff things which is going on the US that is likely going to impact this number. That's what the market analysts are saying. So if we talk about the altcoins, the Ethereum, XRP, and Solana have also maintained a trading session on the higher side with 1 to 3% gains. Crypto market cap has registered a gain of 1.65% in the last 24 hours, with the market cap reaching $2.71 trillion. So thank you, Manoj. Strategy announces preferred stock offering to fund additional Bitcoin purchases. So as per a filing with Securities Exchange Commission, Michael Saylor-led Strategy ने recently announced किया है कि उन्होंने एक sales agreement किया है जहां पे they are going to offer up to $21 billion of 8% Series A perpetual strike preferred stock. तो अब इसमें क्या होगा, जो भी initial investors होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा perks, benefits मिलेंगे, और साथ ही MicroStrategy, now known as Strategy, वो कभी भी इस स्टॉक को एज सिक्योरिटी कन्वर्ट कर सकती है. ओके. और हम सब जानते हैं कि MicroStrategy वो बिगेस्ट होल्डर है वो बिटकॉइन, और उन्होंने बार बार ये भी कहा है कि वो आगे भी बिटकॉइन एक्वायर करते रहेंगे. तो जो इनका ये बिटकॉइन एक्वायरिंग स्प्री है वो उन्हें अब यहाँ तक ले आया है कि ऑलमोस्ट इनके पास 5 लाख बिटकॉइन है. टू बी प्रिसाइज, इट्स द नंबर इज 499,096 BTC दैट दे हैव एक्वायर्ड, और उसकी पूरी जो वर्थ है दैट इज $39.7 बिलियन. और सिर्फ MicroStrategy नहीं है, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी से जुड़ी हुई है. मेटा प्लैनेट भी लगातार जो है बिटकॉइंस को एक्वायर कर रहा है, और उसी से जुड़ी हुई हम आपको अपनी नेक्स्ट खबर भी बता देते हैं. तो यहाँ पर टोक्यो लिस्टेड मेटा प्लैनेट adds 162 बिटकॉइंस टू कंपनी ट्रेजरी. तो जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि मेटा प्लैनेट भी लगातार बिटकॉइंस खरीद रहा है, और उन्होंने कहा भी कि 2025 के एंड तक वो 10,000 बिटकॉइंस एक्वायर करना चाहते हैं. और जो उनकी लेटेस्ट परचेज है ऑफ 162 बिटकॉइंस, इसे खरीदने के बाद उनका पूरा बिटकॉइन स्टैश है वो 3,050 बिटकॉइंस का हो गया है, और उसकी पूरी जो वर्थ है वो है $253 मिलियन, और जो कि उन्होंने एक्वायर किया एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $83,180 per Bitcoin, which is a huge amount. Wow, yes, exactly. And corporates are buying the dip, और market downturn का अच्छा खासा फायदा वो उठा रहे हैं, buying the dip. And moving on, El Salvador buys the dip at 6 more Bitcoin to its holdings. तो यहाँ हम बात ही कर रहे हैं, और El Salvador ने भी 6 Bitcoins accumulate कर लिए हैं. तो उनका जो हमने पैटर्न देखा है कि 1 Bitcoin per day, but now it has purchased 6 Bitcoin, and this comes against the backdrop जहाँ पे IMF जो है, International Monetary Fund, वो उनको प्रेशराइज कर रहा है टू स्टॉप एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन, क्योंकि अब एल साल्वाडोर ने एक लोन लिया था IMF से, जिसके बाद कुछ अग्रीमेंट्स ऐसी थी कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें, एक्यूमुलेट ना करें. बट एल साल्वाडोर का ये कहना है कि हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को नहीं बोल रहे हैं, बट वी आर कंटिन्यूइंग टू बाय बिटकॉइन. राइट. तो थोड़ी अमाउंट में ही सही, छोटे अमाउंट्स में ही सही, वो बिटकॉइन एक्वायर कर रहा है एल साल्वाडोर, और उनका जो पूरा बिटकॉइन स्टैश है वो अब 6,111 BTCs का हो गया, और जो उसकी पूरी वर्थ है वो है $493 मिलियन. तो एल साल्वाडोर रुकने वाला नहीं है. Moving on, US Senator Loomis aims to make Bitcoin a national asset with 1 million BTC reserve bill.
तो हाल ही में जब ट्रंप ने साइन किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को लेके, तभी सिंथिया लूमिस ने रीइंट्रोड्यूस किया बिटकॉइन एक्ट, जिसके अंडर जो अलाउ करता है बेसिकली यूएस गवर्नमेंट को कि वो 1 मिलियन BTCs अपने न्यूली एस्टैब्लिश बिटकॉइन रिजर्व में ऐड कर सकते हैं या रख सकते हैं। और उनका जो प्लान है वो ये है कि अगले 5 सालों में वो इस 1 मिलियन BTC का जो आंकड़ा है या जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे, जिसमें कि हर साल वो ऑलमोस्ट 2 लाख बिटकॉइंस 200,000 बिटकॉइंस को अक्वायर करेंगे और इसे फंड करेगा फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट। राइट, सो यहाँ पे जो बिल है वो डायरेक्ट करता है टू द ट्रेजरी, जहाँ पे उनको $6 billion एनुअली दे कैन एलोकेट फ्रॉम फेडरल रिजर्व रेमिटेंसेस बिटवीन 2025 एंड 2029 टू परचेज मोर बिटकॉइंस। एंड इनफैक्ट इसमें जो भी फेडरल रिजर्व के गोल्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे टू बैक द इनिशिएटिव। सो मूविंग ऑन, बैंक ऑफ रशिया टू अलाउ लिमिटेड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो बाइंग फॉर इन्वेस्टर्स। तो हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो रशिया का स्टांस है वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो गया टूवर्ड्स बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, और उन्होंने अब ये एक तरह से अलाउ कर दिया या सपोर्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज का अडॉप्शन इन द कंट्री। एंड ऑल्सो जो रशिया का सेंट्रल बैंक है वो भी अलाउ कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि वो परचेज कर सकते हैं बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज को, बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। जी, तो यहाँ पे हम जो नए क्रिप्टो रेगुलेशंस आए हैं, जो रूल्स आए हैं उनकी बात करें तो इसमें कुछ 3-4 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो जो है इट विल बी क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी, और बिटकॉइन माइनिंग और सेलिंग में कोई भी वैट नहीं लगेगा, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग इंफ्रा ऑपरेटर्स हैं दे हैव टू रिपोर्ट टू टैक्स अथॉरिटीज टू इशू सम डिजिटल एसेट्स, जिसमें कि फॉर देयर सर्विसेज बेसिकली। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी बिटकॉइन या फिर माइनिंग ऑपरेशंस के थ्रू बिटकॉइन एक्वायर किए जाएंगे, ऑब्टेन किए जाएंगे, उनको क्लासिफाई किया जाएगा एज नॉन मॉनेटरी इनकम। राइट, और हमने जो देखा है कि रशिया का जो स्टांस थोड़ा सा या रुख हल्का सा बदला है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज आफ्टर वी सीन कि ग्लोबली कैसे सपोर्ट मिल रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री को, स्पेशली फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यूएस के फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते क्या रशिया भी अब आगे जाके कोई बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेकर आने वाला है या नहीं। राइट, moving on, South Korea to release institutional crypto investment guidelines by Q3, FSC confirms. तो अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे, that countries walk on the footsteps of other countries, और साउथ कोरिया भी यहाँ पे जापान को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जापान का भी रिसेंटली अनाउंसमेंट आया था कि वो दे आर प्लानिंग कि वो ब्लैंकेट बैन जो है, जो बैन है ETFs पे, उसको हटा देंगे। तो अब साउथ कोरिया भी उनके फुटस्टेप्स पर चल रहा है, और साउथ कोरिया Q3 इसी ईयर तक कुछ गाइडलाइंस लेकर आने वाला है फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन ETFs और क्रिप्टो। वहीं FSC ने कहा है कि पब्लिक कंपनीज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो Q3 तक आएंगी, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर, वो थोड़ा जल्दी लाना चाहते हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दोज गाइडलाइंस बाय से अप्रैल। राइट, moving on, SEC postpones decision on XRP, Solana, Litecoin and Dogecoin ETFs. So we have seen in the past कि जब Bitcoin Ethereum ETFs की बात हो रही थी, उस टाइम पे भी SEC ने अपना डिसीजन जो है ETF को अप्रूव करने का, इनकी फाइलिंग अप्रूव करने का, वो डिले किया था। और अब 4 और क्रिप्टो के जो ETFs है वो डिले हो गए हैं, which are Sol, XRP, Litecoin and Doge. राइट, तो अगर हम बात करें ब्लूमबर्ग के जो ETF एनालिस्ट हैं जेम्स सेफर, उनका कहना है कि ये जो डिले है ये प्रोसीजरल डिले है, जो प्रोसीजर है उसी में ही डिले है। ऐसा नहीं है ये इस डिसीजन से ये ना माना जाए कि SEC ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए हैं ETFs, तो ETFs आने की संभावना अभी भी पूरी बनी हुई है। इट इज ऑल पॉजिटिव टिल नाउ। यस, so that's all in this episode of Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3 TV. And for more information and stories, log on to our website www.3watching.io or scan the QR code. Have a great weekend.